Hello students, welcome you all to our channel Mastering English. आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे which is active and passive voice. When the subject performs the action, that sentence is written in active voice, and when the subject receives the action, that sentence is written in passive voice. In short, we can say that while changing any sentence from active to passive voice, we concentrate not to change the meaning of the sentence. आपको ये बात समझ में आ गई कि जब किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है. इट मीन्स दैट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस object changes into subject, verb, and subject changes into object. We also use by before changing the subject into object. कुल मिलाके हम ये देखते हैं कि हम किसी भी एक सेंटेंस को, एक थॉट को जब अलग अलग ढंग से बोलते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग तो हम उसे एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई डू वी यूज active or passive voice? Why do we not express our thought in one particular way? Yes. मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जब ज्यादा विशेष होता है, we need to focus on it, we use that sentence in active voice. और जब ऑब्जेक्ट रिसीव करने लगता है एक्शन को, यानी ज्यादा एम्फसाइज्ड होता है, ज्यादा फोकस्ड होता है, तो वी नीड टू राइट दैट स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाई टू यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस कि प्रेजेंट टेंस में हम कैसे किसी स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करें. In present definite tense, you all know that we need to use subject, first form of action verb, and object. There are three types of sentences, as you have already read in tenses like affirmative, negative, and interrogative. Starting with affirmative. सबसे पहले हम यूज करते हैं subject, फिर action verb का first form, and after that object. Now, how to change such an affirmative sentence of simple present tense into passive voice? Say, for example, I love my mother. कैसे चेंज करेंगे हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में? I love my mother. इसमें आप देख रहे हैं I is the doer of the action, and what is the action here? That I love my mother. And what is the receiver? My mother. So I love my mother in this sentence, the emphasis is laid upon I, who is the doer of the action. Now how to change it? As I have already told you in my previous video, that object takes the place of the subject. And what is the object? My mother. My mother is the receiver of the action, which takes the place of subject. So my mother. Now be verb is used here in present form, which is, am, are. My mother is. Why? Because my mother is singular number. So is as singular verb is used with subject. So my mother is loved. Loved, third form of action verb, is always used in all passive voice. So my mother is loved by me. What does this mean? I, which was the doer of the action, has changed into object, which is me. Now I must tell you the different pronouns which change into object, and you must be familiar with them, like I, which is the first person pronoun, which changes into me as an object. We changes into us. You, second person pronoun, changes into you. And third person pronoun
he changes into him, she into her, they into them, it into it. Now I'll give you another example, like Tom reads a novel. Again, novel takes the place of subject. A novel is read by Tom. This is what you have learned, affirmative sentence. Now we will learn how to change a negative sentence into passive voice. Negative sentence में जैसा कि आप जानते हैं हम does और do का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो हम एग्जांपल लेते हैं, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर रेगुलरली. इसको हम नेगेटिव में बोलेंगे, माय फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली. अब इस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? व्हाट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? न्यूज़पेपर. So newspaper takes the place of subject. Newspaper is read regularly by my father. Now my father does not read newspaper regularly. Newspaper is not read regularly by my father. इसका मतलब है कि चूंकि हम बी का फॉर्म यहाँ यूज करते हैं इज एम आर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बीच में उसके जस्ट बाद हम नॉट नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं. तो आपने देखा कि न्यूज़पेपर इज नॉट रेड रेगुलरली बाय माय फादर. अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूजुअली यूज WH फैमिली वर्ड्स जो है व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा. अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, हु रीड्स न्यूज़पेपर रेगुलरली. अब कैसे हम चेंज करेंगे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में? हु, जब सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसको हम पैसिव में चेंज करते समय बाय हुम बिगनिंग में ही यूज करते हैं. बाय हुम यूज करने के बाद हम देखते हैं कि चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है इसलिए बी का फॉर्म हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करने के पहले यूज करना है. तो बाय हुम इज न्यूज़पेपर रेड रेगुलरली. अब आपने देखा कि बाय हुम शब्द हमने शुरू में यूज कर लिया तो अब लास्ट में बाय हुम की जरूरत नहीं पड़ती. तो व्हाट इज इट? बाय हुम इज न्यूज़पेपर रेड. अब हम एक और एग्जांपल देंगे, व्हाई डू यू प्लग फ्लावर्स? हाउ टू चेंज इट? Why are flowers plucked by you? तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ. कभी अगर आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज करना हो तब भी आप इसी रूल को फॉलो करके, इसी मेथड को फॉलो करके चेंज करेंगे. अब हम अगला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसा कि आप जानते हैं एक्शन वर्ब प्रोग्रेसिव होता है, यानी कोई भी काम प्रोग्रेसिव होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है. तो उस मीनिंग को शो करने के लिए हम कैसे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे जिससे कि हम उस सेंस को प्रूव कर सके कि द एक्शन इज इन प्रोग्रेस. एज यूजुअल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह. व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस इज being, B-E-I-N-G. I'll give an example before you. Like I'm writing a letter. यहाँ क्या है? Letter writing is in progress. Writing, I-N-G form of the action. अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में? आई होप आप सब समझ रहे हैं कि ये सारे सेंटेंस जो मैं पहले आपको बता रही हूँ वो एक्टिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस कैसे? जहाँ डूअर ऑफ द एक्शन is emphasized. यहाँ doer of the action पर ज्यादा emphasis पड़ रहा है, यानी वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं पैसिव में, जहाँ एक्शन को रिसीव करेगा सब्जेक्ट. तो हमने एग्जांपल दिया कि I am writing a letter. Now a letter which is the receiver of the action takes the place of subject. So a letter, अब letter है सिंगुलर नंबर नाउन, तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए? is. तो a letter is. अब what is that extra word which is used in continuous tense is being, B-E-I-N-G. So a letter is being
as usual I have told you that third form of action verb is used in every passive voice. So a letter is being written by whom? By me. I changes into object, which is me. So this is an example of affirmative sentence. When we come to negative sentence, it is I am not writing a letter. How to change it? A letter is not being. अब ये not कहाँ आ जाता है? Verb और being के बीच में. तो a letter is not being written by me. ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बहुत सिंपल है, केवल बीइंग और वर्ब के बीच में हम नॉट लाते हैं. अब नेगेटिव का एक और एग्जांपल देना चाहूंगी. शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे? अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग sung by her. शी को हमने हर में चेंज किया और sung जो थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब sing का है वो यूज हुआ. और आपने देखा कि not कहाँ जा रहा है? verb और being के बीच में. तो इस तरह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं. अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. दे आर नॉट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट is not being worked on by them. तो इस तरह आपने देखा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर. इंट्रोगेटिव में जैसा आप जानते हैं कि वर्ब्स WH फैमिली के जितने वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं और जिसमें सेंटेंस कैसा होता है? क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव होता है. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. इसमें why are they beating him? Say for example, why are they beating him? आपने देखा कि they के पहले are आया. क्यों आया? क्योंकि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, तभी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन पाता है. तो why are they beating him को हम कैसे चेंज करेंगे? why अपनी जगह रहेगा, WH फैमिली का वर्ड अपनी जगह रहेगा. why के बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखने के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम. हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही. ही सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी कि जो वर्ब हम यूज करने वाले हैं वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए. तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज. यानी कि why is he और उसके बाद हम करेंगे being. being अपनी जगह रहेगा. तो why is he being और beat का थर्ड फॉर्म क्या होगा? beaten by. एक और एग्जांपल हम इंट्रोगेटिव का लेते हैं. why is she learning German? नाउ कैसे इसको हम चेंज करेंगे? why is German being learned by her? तो आपने देखा कि इस तरह WH फैमिली का वर्ड जब भी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले हम उसका यूज करते हैं. फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले हम वर्ब को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर. अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. उसके बाद हम बीइंग यूज करते हैं और एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन वी चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इस तरह आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका. एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वेरी वेल. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसा कि आपने पढ़ा है हैज और हैव वर्ब का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद, यानी ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है और आई वी यू दे और प्लूरल नंबर नाउन के साथ हैव का यूज होता है. जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम क्या करते हैं? हमेशा की तरह वी चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. तब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि he has cheated me. he has cheated me में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? me रिसीवर ऑफ द एक्शन है. कौन चीट हो रहा है, यानी कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को? मी.
तो मी रिसीवर ऑफ द एक्शन होने के कारण ये सब्जेक्ट की प्लेस पर जाएगा और मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब आई के बाद जैसा कि हमने कहा कि आपको यूज करना है हैज और हैव के साथ बीन यानी परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही हैज चीटेड मी में हैज किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ? ही के अकॉर्डिंग, जो कि उसके साथ यूज होता है। लेकिन अब जो वर्ब हमें यूज करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है? आई के अकॉर्डिंग करना है। और आई के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है? हैव। और हैव के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि हमें बीन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। तो क्या हम लिखेंगे? आई हैव बीन। आई हैव बीन के बाद जो हमने वर्ब यूज किया है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब था, जो था चीटेड। तो आई हैव बीन चीटेड बाय हिम। ही जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो इस तरह असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पैसिव में चेंज किया हमने। जैसे कि he has cheated me का हमने पैसिव किया he has been cheated by me या I have been cheated by him। अगर हम बोलते हैं he has cheated me तो I have been cheated by him। और अगर हम बोलते हैं he has cheated me तो I have been cheated by him। तो इस तरह assertive sentence में हमने देखा कि object into subject, have been and has been, third form of action verb and plus subject into object by का यूज कर। एक और एग्जाम्पल हम सीखते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज समझ में आ जाए। She has prepared breakfast today. She has prepared breakfast today is the best example of present perfect tense। अब कैसे इसको हम चेंज करेंगे? रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, यानी ब्रेकफास्ट जो कि सिंगुलर में है इसलिए हैज का यूज करेंगे। तो ब्रेकफास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, बाय हर। शी हैज प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। तो इस तरह आपने देखा असर्टिव सेंटेंस में परफेक्ट टेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ये तो था assertive sentence। Now we will learn how to change negative sentence into passive voice। चूंकि हम has और have का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो जब नेगेटिव वर्ड not का यूज करने की बारी आती है then we use it right after that। तो सेंटेंस था हमारा he has prepared breakfast today। इसको नेगेटिव में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो we will change it like this, she has not prepared breakfast today। She has prepared the breakfast today का क्या होगा? She has not prepared the breakfast today। And the passive, breakfast has not been prepared today by her। यानी कि has और been के बीच में हमने नेगेटिव वर्ड not का यूज किया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। They have taught us English। यहाँ आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और अस प्रोनाउन के रूप में। ऐसे कंडीशन में जब आपके सामने दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। पढ़ाया क्या जा रहा है? इंग्लिश। सो इंग्लिश ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करके इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, और हम दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी चेंज करके हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस था दे हैव टॉट अस इंग्लिश। इसको हम चेंज करते हैं पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। इंग्लिश हैज बीन टॉट टू अस बाय देम। इंग्लिश हैज बीन टॉट टू अस बाय देम। ये तो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस। अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। वी हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय देम। तो इस तरह आपने देखा कि दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमारा एग्जाम्पल था दे हैव टॉट अस इंग्लिश। इसी को अगर नेगेटिव में कहना चाहें तो दे हैव नॉट टॉट अस इंग्लिश। इसको कैसे हम चेंज करेंगे? इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट
to us by them, या we have not been taught English by them। इस तरह आपने देखा कि has और have के बीच और been के बीच में has या have आप यूज करें, और उसके बाद जो been यूज करें उसके बीच में नेगेटिव वर्ड not का यूज करके हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। इसके बाद हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। Why has he received his father? इसको कैसे चेंज करेंगे? why को अपनी जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाने से पहले हमें वर्ब का यूज करना चाहिए। तो फादर चूंकि ऑब्जेक्ट है, हमें आगे लाना है सब्जेक्ट की जगह पर। तो why has his father been received by him? Why has his father been received by him? इस तरह इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब मैं एक हु का एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। Who has beaten you? फॉर एग्जाम्पल। अब आपने देखा कि WH फैमिली के जो अदर वर्ड्स हैं उसको चेंज करने का तरीका अलग है, लेकिन जब हम सेंटेंस हु से शुरू करते हैं तो हम बाय का यूज पहले करते हैं। तो हम कैसे चेंज करेंगे इस सेंटेंस को? Who has beaten you को कैसे चेंज करेंगे? By whom have you? You को आगे लाना है तो you के पहले क्या आना चाहिए? have। Why have you been beaten? तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और कीप प्रैक्टिसिंग, आप यू विल गेट परफेक्शन ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, लेकिन लेट मी टेल यू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। तो हमने ये 3 टेंसेस पढ़े, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, इसलिए हम इसे नहीं सीख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पास्ट टेंस के ऊपर होगा, जिसमें हम सीखेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे हम चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में। सो वी लर्न हाउ टू चेंज एनी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस अंडर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट